Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA हेमंत गुप्ता. As I have started a series जिसमें मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट टैक्स पेपर के बारे में, CA इंटर एंड CA फाइनल की. सो इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, राइटिंग प्रैक्टिस एंड बेस्ट स्ट्रेटजीज कौन सी हैं. सो इस सब के लिए मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्टली उन स्टूडेंट से जिन्होंने रिसेंटली CA फाइनल एंड CA इंटर लेवल पे इस एग्जाम को क्रैक किया है. सो आज का सेशन बहुत यूजफुल है बिकॉज ज्वाइनिंग मी टुडे इज CA Anshul Goyal from Jaipur. He scored 55 marks in his CA final, and so without delay जानते हैं उनसे उनकी strategy and preparation journey. Yeah. Hello, sir. Hi, Sir. Anshul. I'm recently qualified CA in May 2025, and I'm currently working in Delhi, mid-size CA firm actually as a consultant in direct taxation and indirect taxation both. I'm belonging from Rajasthan itself. Basically done my articles in the Jaipur in a mid-size firm actually. Since I'm looking for practicing in the future, so I have chosen a mid-size firm for better opportunities. How many marks you obtained in your CA final direct tax? Sir, I have obtained 55 marks in direct taxation. Let's start. I just wanted to discuss with you how you made your direct tax paper, how you revised it, and how you performed in the exam. What helped you, what didn't help you. So, starting with CA final is very vast. CA final direct tax labor is very vast as compared to CA inter. So, what Yeah. changes you notice? How did you take this? How did you take this? Like CA final versus CA inter direct tax. Sir, I have started my I have started my classes since the first day of my articleship and completed all the classes except DT in the second year itself. And in the last year of my articleship, in the Jan, I have opted for direct taxation classes online, virtual mode actually. Since after the COVID scenarios, there has been a option both for the both for online and offline education. I have opted for online education since I have got enough of the leaves during the articleship. So I have started my direct taxation classes during the GMCS. Actually, I am doing my GMCS and advanced ITT in Jan and Feb. Then I have started the direct taxation classes actually. And before I am going into the leaps for the preparation of the final. I have completed my direct taxation course through online mode. Then I have then I What, sir? Before going to your leave for exam, you Leaves. Yeah, completed your one time syllabus of the direct tax. That's good. That's yeah, yeah, बहुत जरूरत है उसकी उससे पहले सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है. तो yeah, yeah. आपने अपना स्टडी प्लान कैसे डिवाइड किया, इंटरनेशनल टैक्स एंड डोमेस्टिक टैक्स, आपको क्या इजी लगा, इसमें कौन सा ज्यादा बेटर? सर एक्चुअली डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा हुआ होता है. डायरेक्ट टैक्सेशन का मेनली वर्क होता है. सिंस आई एम इन जयपुर, नेशनल स्टेट कैपिटल ऑफ राजस्थान एक्चुअली, एंड देयर हैज बीन अ much opportunity in direct taxation, so I have the basic knowledge or an advanced knowledge of direct taxation since I am working in a direct taxation field only, direct and indirect taxation field only. So it is easier for me to connect to the direct taxation concept since I have been working in the direct taxation. International taxation is good, but I have first completed my direct taxation, then I have moved to the international taxation. I planned my revision like that. First revision is for 10 days. I have taken 10 days for first revision, only the direct taxation and international taxation. All day long I have continuously read direct taxation and international taxation for the knowledge or having a deep understanding of laws. Since
सिंस की ये होता है कि पहली बार आप अगर पढ़ो कोई चीज तो वो जितना डीप पढ़ लोगे उतना बेटर है, बेसिकली क्योंकि सेकंड यदि मैं ऐड ऑन करता हूँ तो आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके या बाद आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स करना स्टार्ट किया। आपके हिसाब से या तो पहले हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फर्स्ट सिलेबस। हाँ, पहले कॉन्सेप्चुअल पहले बेसिकली यही होता है कि कॉन्सेप्चुअल अगर हो गए ना तो प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हो, मान लो कोई कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो कि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी एनआर का है या रेजिडेंट है या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग में कौन सा मेथड है, क्योंकि सिंस ट्रांसफर प्राइसिंग में भी 5 मेथड्स होता है फॉर कैलकुलेशन, या आप पता कर पा रहे हो कि रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी किससे कनेक्टेड है। इस वजह से पहले कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन मैंने लिख के किए थे, सारे जो भी जितनी भी बार मैंने रिवीजन किया, आई हैव डन ऑलमोस्ट 5 to 6 रिवीजन्स बिफोर completed my CA, and I have studied or I have written every question in every single revision. मेंशन आपने 10 डेज कंटिन्यूअसली रिवीजन किया पीटी का हाँ आफ्टर योर सिलेबस कवरेज, देन उसके बाद भी आपने 4 to 5 रिवीजन आपने कंप्लीट किए एग्जाम से पहले। हाँ, और पहला रिवीजन 10 दिन का था, उसके बाद में फिर डेज में कम करता गया, क्योंकि मैंने सीए फाइनल की प्रिपरेशन उस हिसाब से एस्टेब्लिश करी थी कि मेरे को एवरी सब्जेक्ट को पहले ही रिवीजन में 10 से 12 दिन देना है, सेकंड रिवीजन में मेरे को 8 से 10 दिन के बीच में या 6 से 8 दिन के बीच में देना है, देन फिर 5 days, 3 days, 2 days. I have completed my CA. I have completed my last revision in 2 days. सो दैट कि मेरे को जब लास्ट डे जो 1 डे रिवीजन होता है उसमें मेरे को ये था कि मेरे को क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना, मेरे को बस कुछ चीजें थी जो क्लैरिफाई करनी थी, जो लेटेस्टली जो अमेंडमेंट्स होते हैं, क्योंकि सिंस सीए फाइनल में अमेंडमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, सीए फाइनल्स क्या इंटर में भी अमेंडमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स एक्चुअली कवर्स 20 और 30% ऑफ योर एंटायर पेपर। और दूसरा ये भी है कि अभी नया जो एक सब्जेक्ट जुड़ा है आईवीएस, उसमें भी आपको फिर क्लिक करना पड़े, इस वजह से आपको चीजें पहली बार में बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी भी पड़ेंगी। आईपीएस में भी डायरेक्ट टेक्स्ट आएगा एंड उसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको 8 सब्जेक्ट चाहिए, मतलब 6 तो यही मेन जो सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट ये तो है ही, एडिशनली लॉ और कॉस्ट भी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी जब हम सिलेबस को फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छे से कवर करें, क्योंकि सिलेबस कॉस्ट है तो हमें सिलेबस पे फोकस करना है विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, वो क्लियर या होगा तो रिवीजन भी आसानी से कर। रिवी रिवी और फिर ये था, मैंने 2 रिवीजन तक मैंने कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए, थर्ड रिवीजन से मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया एक्चुअली, तब तक मेरा सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो गया था, अगस्त तक मेरा कंप्लीट हो गया था, सितंबर में मैंने पहला रिवीजन मतलब पहला मॉक टेस्ट दिया था। Dividing your exam leaves period, if you divide it into the subject wise or month wise, तो ये आपको 5 months का लीव मिला, राइट? या तो इन या 5 months आपने शुरू के 2-3 महीने आपने सब्जेक्ट वाइज 10-10 days डिवोट किए, या यस सर। तो आपके मोटा मोटा 2 महीने आपका 2 महीना फर्स्ट कवरेज में लग गया, फर्स्ट रिवीजन में आपका कंज्यूम हो गया, देन उसके बाद आपने ग्रेजुअली डेज रिड्यूस किए एंड सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दिया, राइट? या टीटी में आपको ज्यादा हाँ, एफर्ट करने पड़ेंगे? डीटी में ज्यादा एफर्ट करने पड़े, क्योंकि डीटी एक्चुअली मैं समझता हूँ सब्जेक्ट इजी है बट वास्ट है, और आपको इसका एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतना ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट ही उस हिसाब के हैं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं मिस नहीं कर सकते, और जो सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप सीए फाइनल क्लियर कर पाओगे। अगर आपके टिप्स पे नहीं है तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाओ ही मत, पहली बात तो। कमिंग टू मॉक टेस्ट,
जब आपने रिवीजन कर लिया तो आपने मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट, लाइक कितने आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए फॉर डायरेक्ट एंड कितने सर आई आपके हैव हिसाब से स्टूडेंट्स को लाइक कितने मिनिमम एटलीस्ट करना चाहिए, मिनिमम कितना करना चाहिए? सर मैंने तो 3 अटेम्प्ट किए थे एक्चुअली। पहले पहला मॉक टेस्ट जो दिया था उसमें मैंने देखा था कि मेरी क्या गलतियां हो रही, मतलब मैंने पहले इंटर का रियलाइज किया था कि इंटर में मैंने क्या गलतियां करी थी। लाइक कि जो 14 नंबर का जो सबसे हमारे टाइम पे जो 14 नंबर का इंटर में पहला क्वेश्चन आता था, जो अभी तो कम हो गया है सिंस क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह आ गए हैं इसके वजह से। तो जो वो जो बड़ा क्वेश्चन आता था उसमें मैं पहले नोट्स नहीं लिखता था। मैंने ये फिर अपना जब रिवीजन फाइनल्स का रिवीजन स्टार्ट किया तो मैंने सारे नोट्स डालना स्टार्ट किया। वही सेम पैटर्न मैंने मॉक टेस्ट में अपनाया। मैंने सारे नोट्स बनाए, सारे नोट्स लिखे प्रॉपर ढंग से। फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट में भी वो सेम नोट्स लिखे, उसका मेरे को इफेक्ट भी दिखा। मेरे पहले मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स के समथिंग आए थे। सेकंड मॉक टेस्ट में आई गेस 72 थे एंड थर्ड मॉक टेस्ट 84 मार्क्स। नोट्स टेकिंग जब आप स्टडी करते हैं, जब आप अपना सिलेबस कवर करते हैं, तो आप आपने कुछ नोट्स बनाए एडिशनली, यू नो, ऑन द फॉर्म ऑफ चिट्स, इन द फॉर्म ऑफ चिट्स और सेपरेट पेपर्स, शॉर्ट नोट्स? या एक्चुअली एक्चुअली मैंने पहले स्टडी किया पूरा कोर्स की किस हिसाब का है, किस हिसाब से पैटर्न पे हमें क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने देखा कि जनरली एक केस लॉज करके हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आई गेस, जिसमें हमें 3 में से कोई 2 केस स्टडी करनी चूज करनी पड़ती है और वो उनका राइट डाउन करना पड़ता है। मैंने उन पे फोकस किया। मैंने रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी देखे तो उसमें पता चला कि आप खाली पिछले 2 अटेम्प्ट्स के जो भी अमेंडमेंट नोट आ रहे हैं उनमें जो भी केस स्टडियां आ रही हैं, आप खाली उन केस स्टडियों को पढ़ लोगे तो आपके वो केस स्टडी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपके 3 में से 2 केस स्टडी वही आएंगे जो आपके रिसेंट 2 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट में आपको अमेंडमेंट्स में केस स्टडियां मिली है। तो 10 मार्क्स तो मैंने वहां से सिक्योर करे थे। अब हम आते हैं एग्जाम डे पर। तो एग्जाम डे से पहले आपको एक दिन की लीव मिलती है, बट इट इज फॉर्चुनेट, दो स्टूडेंट आर फॉर्चुनेट, किसी को 2 दिन मिल जाते हैं ड्यू टू एनी वैकेशन और बजटेड हॉलीडे। तो या तो बेसिकली ऑन दैट डे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है? आपने कैसे डिसाइड किया रिवाइज में कैसे करना है? डीटी और ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्स, टू कंप्लीट सिलेबस आप कर पाए रिवाइज? और कर पाए तो देन आपने कैसे वन डे में उसको कैसे कवर करने? एक्चुअली डीटी से पहले हमारा ऑडिट का पेपर होता है, थर्ड पेपर। ऑडिट का पेपर होना ही अपने आप में बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी बात होती है। तो ऑडिट वाले पेपर वाले दिन मेरा मतलब शेड्यूल रहता था कि पेपर जिस दिन हो रहा है उस दिन मैं जाके बस आराम से सोऊंगा। लेट मैं जाके मैं 5 बजे हमारा पेपर छूटता है, 6 बजे 6:30 बजे नॉर्मली सारे घर पे पहुंच जाते हैं। मैं 7 बजे तक खाना वाना लंच वगैरह जो भी करना होता है डिनर वगैरह कर करा के मैं सो जाता था। रात में फिर मैं 12-1 बजे के समथिंग उठता और 6 बजे तक मैं कोशिश करी थी मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट करने की, जो मेरा 8 बजे तक कंप्लीट हो गया था। आपने फर्स्ट इंटरनेशनल टेक्स्ट को प्रायोरिटाइज किया रिवाइज करने के लिए, और इसका रीजन क्या है आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि सर इंटरनेशनल टैक्सेशन में मार्क्स इजी होता है एज कम्पेयर टू डीटी। राइट, और कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है अंडरस्टैंड करना, एंड वो थोड़ा इजी लिमिटेड अब भी जा है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में जैसे कॉमन है डीटी डबल ए का क्वेश्चन आता है, वो जनरली इजी होता है, उतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता। या ट्रांसफर प्राइसिंग का है तो ट्रांसफर प्राइसिंग में आप 2-3 चीजें पढ़ लो हो जाता है। अब फिर फिर एक वो बीईपीएस वगैरह वो सारे होते हैं, उनमें उनको जनरली कोई पढ़ता नहीं है, गार वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें मैंने मतलब 8 बजे तक कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह या कोई भी रेडी वगैरह होना है वो 9 9 साढ़े 9 बजे, फिर मैं दोबारा 9 9:30 10 बजे के समथिंग मैं दोबारा स्टडी पे बैठा। फिर मैंने 7 7 साढ़े 7 बजे तक मैंने कंप्लीट कर लिया था मेरा डीटी सिलेबस जो मेरे को पढ़ना था। मैंने सारे चैप्टर्स कवर नहीं किए, लाइक कि कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन का पता है कि एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में आता है, ऑल्टरनेट टाइप होता है, तो मैंने कैपिटल गेन को प्रायोरिटाइज नहीं किया। मैंने वो चीजें प्रायोरिटाइज करी जो आती हैं। या जैसे पीजीवीपी है, पीजीवीपी आप सेम अगर आप लास्ट डे सोचो कि हमें पढ़ के जाना है तो नहीं हो सकता, पीजीवीपी आपको पहले से ही करना पड़ेगा।
लास्ट डे अगर आप सोचो, लास्ट डे खाली आप इतना कर सकते हो कि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है उनमें मैंने चिट्स लगाए हुए थे कि ये चीज है मेरे को देखनी है, खाली जस्ट लाइक कि डेप्रिशिएशन है तो डेप्रिशिएशन में अगर भाई अमालगमेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तो वो किस हिसाब से करना है, या ब्लॉक ऑफ एसेट किस हिसाब से सेल होती है, या किस हिसाब से डेप्रिशिएशन लगता है, वो सारा बस ये दो तीन चीजें पीजीबीपी में देखी, क्योंकि मेजरली जो होता है डायरेक्ट टैक्सेशन में वो पीजीबीपी और कैपिटल गेन होता है। उस उसके बाद में फिर ये था, मैंने सबसे पहले अपील्स एंड रिवीजन से स्टार्ट किया था। अपील्स एंड रिवीजन कंप्लीट करे, फिर उसके बाद में मैं, क्योंकि अपील्स एंड रिवीजन हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स भी आए थे, और लकीली हमारे पेपर में भी अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आ गए, तो उसका भी इफेक्ट पड़ गया। फिर 7 बजे तक मेरा सिलेबस हो गया था, 7 साढ़े 7 बजे। फिर मैं जल्दी वही, क्योंकि मेरे को नाइट नाइट शिफ्ट का आदत है, तो मैं जल्दी सो गया था 12-1 बजे के समथिंग। फिर मैं दोबारा उठा, तब मैंने सुबह खाली अमेंडमेंट नोट्स जो थे वो देखे थे मेजरली बस। लास्ट मेरा था कि मेरे को 6 बजे तक कंप्लीट, क्योंकि मेरा जो रहता है, मैं एक्चुअली उन बच्चों में से नहीं हूँ कि मेरे को लास्ट तक पढ़ना है, कि मेरे को 1:45 पेपर देने जाना है, 1:30 बजे तक मैं बुक्स देख रहा हूँ, वो मेरा नहीं है। मेरे से एक्चुअली मैं पढ़ भी जाऊंगा तो मेरे को याद नहीं रहता। मेरा रहता है कि 7 बजे 8 बजे लास्ट होता है, इससे इसके बाद में आपको पढ़ने की उतनी ज्यादा नीड नहीं है, सिंस कि आपकी पुरानी जो प्रिपरेशन है बस उसी पे फोकस रहो कि हाँ करा है वो अच्छा करा है, होगा जो अच्छा होगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स कितना हेल्पफुल रहते हैं आपको स्ट्रेटेजाइज करने में? एक्चुअली सर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स आप बिफोर द मतलब बिफोर स्टडिंग और बिफोर द एक तरह से आप जब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो या आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो, उस टाइम पे आप पहले रियलाइज कर लो कि पुराने जो भी पेपर्स हैं रिसेंट के, या आपको रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट्स सफिशिएंट है वो गेन करने के लिए कि पेपर किस हिसाब से बन के आता है, जिससे कि आपको ये हेल्पफुल हो जाए कि आपको किस चैप्टर पे फोकस ज्यादा करना है। मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी थी अपील्स एंड रिवीजन्स में, डीटी डबल ए में, तो मैंने फोकस उन पे ज्यादा किया था, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग होता है एक्चुअली। कोई पढ़ के नहीं जाता अपील्स एंड रिवीजन, सारे उसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं जनरली। या आप बीईपीएस वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एक थ्योरेटिकल टाइप होता है बीईपीएस, और It depends on every candidate interest. Okay, so it is या percentage. It is different for each one. So on the exam day when you are having your exam in your hand, basically. So how did you decide आपको पहले कौन सा attempt करना है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी जो होता है वो सबसे पहले किया आपने या बाद में वो कितना मैटर करता है मतलब exam? मतलब सर मैंने तो यही सुना था, यही किया कि स्ट्रेंथ पे खेलो, तो मैंने पहले जो क्वेश्चन मेरे को दिखे थे जो भी कि आते हैं पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करे। मेरा 4 बजे के समथिंग मैंने जो भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कंप्लीट कर लिए। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था खाली, जो बड़ा वाला क्वेश्चन था जो पीजीबीपी का, जो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो क्वेश्चन रहा था, और एमसीक्यूज रहते हैं। फिर मैंने फोकस किया एमसीक्यूज मेरे को कंप्लीट करने हैं। मैंने 4 से 4:30 बजे तक मैंने एमसीक्यूज मेरे सारे हो गए थे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं उसमें मैंने मार्क कर लिए थे कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को करने हैं। और एमसीक्यूज भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ एमसीक्यू मेरे ड्यूरिंग द 15 मिनट्स हो गए थे, कि ये एमसीक्यूज के ये आंसर्स हैं, सिंस की कुछ तो इजी कुछ तो डायरेक्ट थे, क्योंकि रिवीजन, क्योंकि अमेंडमेंट्स नोट्स के आए हुए थे, तो वो जो डायरेक्ट थे वो तो तुरंत ही हो गए, और बाकी कुछ बचे थे उनमें टाइम लगा 30 मिनट का। बाकी तो मेरा 4:30 बजे तक कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज। फिर मेरा आधा घंटा लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हो गया। 4 बजे तक मतलब मैंने जो पहले जो शुरू के जो 2 घंटे थे उसमें मैंने जो क्वेश्चन करे थे वो क्रॉस चेक भी कर लिए थे, क्योंकि पता था कि लास्ट के 1 घंटे में हो सकता है क्रॉस चेक नहीं भी हो पाए। बहुत जरूरी है क्रॉस चेक करना। बहुत बार हम कर देते हैं बट हमें बाद में रियलाइज होता है कहीं मिस्टेक हो गई हो, तो इफ वी हैव टाइम तो वी शुड डेफिनेटली क्रॉस चेक। तो एंड मैंने मैंने ये भी था ड्यूरिंग द मतलब जो मेरी सीट थी, मैंने सारे क्वेश्चंस के लिए एक एक्स्ट्रा पेजेस भी लीव किए थे एक्चुअली, कि अगर कोई गलती हो तो वो मैं वहां से करेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे लिख दूं। So, if I summarize this entire discussion, so what I felt that
स्टूडेंट को टाइमली सिलेबस कवरेज सबसे पहले करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट Yeah. प्रायोरिटी। देन डिसाइड करना है कि हम एग्जाम से पहले हमें कितनी लीव्स मिलनी है, दैट डिपेंड्स, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 3 रिवीजन, व्हाट आई कंसीडर इज मिनिमम 3 रिवीजन बिफोर एग्जाम, Three revisions minimum. आउट But ऑफ three 1, revision in deep. yeah, out of those 3, 1 should be, sufficient one. That 5 to 6 days, or in your case, you took 10 days. So at least 5 to 6 days हमें devote करना है on the first revision, so that हम notes बना सके, हम prioritize कर सके कौन से चैप्टर हमारे लिए important है, हम analyze कर सके past papers, mock test and amendment. Then इसके बाद And I हमें guess कि आप जब आर्टिकल से फ्रॉम द फर्स्ट डे आप स्टार्ट कर रहे हो, आप और क्लासेस ले लो, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनको छोड़ के, क्योंकि और क्लासेस में अमेंडमेंट नहीं आते, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अमेंडमेंट आते हैं। इनका आप लास्ट रखो कि जब जैसे प्रिपरेशन पे जा रहे हो उससे पहले आप उनको भी कंप्लीट कर लो। कोशिश करो कि जब आप छुट्टियों पे जाओ तो आप प्रॉपर अपना डिवोट करो टाइम, वो पूरा प्रिपरेशन पे ही करो, आप स्टडी पे ही करो, वो उस टाइम में आप क्लासेस नहीं ले रहे हो। एंड मिनिमम 12 to 13 आवर्स स्टडी आप सिटिंग चाहिए, चाहे कुछ भी हो, फाइनल्स है तो। आफ्टर the revision, स्टूडेंट्स को आई थिंक एंश्योर करना चाहिए कि एग्जाम पेपर को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑन द एग्जाम या डे रिवीजन में एंश्योर करना चाहिए कहीं ना कहीं दैट एटलीस्ट वो एंटायर सिलेबस नहीं हो पा रहा है, बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को कवर कर लें। एंड एज यू मेंशन, स्ट्रेंथ पर खेलना है, तो अपनी स्ट्रेंथ को उस दिन हमें और स्ट्रेंथन करना है एग्जाम डे से पहले। एंड ऑन द एग्जाम डे हमें डिसाइड करना है हमें कैसे राइटिंग करनी है, तो दैट डिपेंड्स ऑन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, वहाँ पे वो हेल्प आती है। एंड आपको वो प्रायोरिटाइज करना है मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करें, तो वो डिपेंड करेगा सारा आपके मतलब क्वेश्चन। कोशिश करो कि आप कुछ भी चीजें लिख रहे हो, मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी आप अगर कुछ भी चीजें लिख रहे हो तो वो उस हिसाब से लिख रहे हो कि आप एज अ पेपर में जो चीज आपको लिखनी है ना, वो चीज वो चीज आप उसी दिन से, पहले दिन से वही चीज ये बहुत लिखो अच्छा टिप है आप। आपका। हमें हाँ तैयारी ही उस माइंडसेट से करनी कि हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, वी हैव टू आंसर इन द एग्जाम। तो या उस तरह से हम प्रिपरेशन करें, उस तरह से हम रिवाइज करें, जिससे हम उसको राइटिंग की प्रैक्टिस भी करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज मस्ट एक्चुअली क्या होता है कि ठीक है, मतलब पहला रिवीजन जब करते हैं तब तक तो ये रहता है कि यार हाँ ये पहली बार क्वेश्चन किया हुआ। सेकंड रिवीजन में क्या होता है, यार ये क्वेश्चन तो पहले ही किया हुआ है, ठीक है ऐसे ऐसे होगा, नॉर्मली बस माइंड कैलकुलेशन कर ली। थर्ड रिवीजन में और भी ज्यादा एडवांस, थर्ड रिवीजन में बच्चे करते हैं कि कुछ भी नहीं यार, अरे यार ये इसका तो आंसर ही है। पर ऐसे आईसीआई तो नहीं मानने वाला, आईसीआई को तो भाई पूरा प्रोसेस चाहिए, और वो कब आएगा। और एक्चुअली डीटी में आपको 30 to 35 पेजेस लगते हैं, लिटरली 30 पेजेस तो लगते हैं कोई भी कॉपी भरने के लिए, और 30 पेजेस में आपको दिमाग भी लगाना है, 3 घंटे में भरने हैं, तो आपको प्रिपरेशन अच्छी शुरू में ही करना जरूरी है। लास्ट आपके तरफ से 3 टिप्स आप कुछ देना चाहें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। पहला तो सर यही है कि एक तो रिटन प्रैक्टिस, जस्ट लाइक कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने यही क्वेश्चन आया, आपको सबसे पहले सेम टू सेम जो भी आपको लिखना है वो आप पहले दिन से ही लिखना स्टार्ट करो। दूसरा, आप अपनी क्लासेस बिफोर गोइंग टू लीव आपकी क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाए। तीसरा, आप अमेंडमेंट नोट्स को लास्ट डे के लिए, अमेंडमेंट नोट्स को भी साथ में पढ़ो, क्योंकि अमेंडमेंट्स नोट्स much more important than the covering of whole syllabus, since amendment notes cover at least 20 to 30% of your entire paper. आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू गॉट 55 मार्क्स, तो वेरी इंस्पायरिंग फॉर स्टूडेंट्स। एंड आपने बहुत अच्छी बातें रखी, स्पेसिफिकली आई लव दैट स्ट्रेंथ पर खेलो, और अपनी स्ट्रेंथ को भी हमें और मजबूत बनाना है, तभी हम अच्छा स्कोर करें। Yeah, तो yes sir. anything else from your side? Nothing sir, actually. Yeah. I've actually covered all the basics, all the hard work I do. So thank you so much for demonstrating your strategy of direct access. Thank you sir, thank you.